ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਪੂ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੱਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਫਰ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जो मर्जी उनको MP से आज आपने LOP भी बना दिया, पर पप्पू पप्पू ही रहा। वो बात को छुपाने के लिए आज जो सीनियर मोस्ट देश में, मैं समझता हूं कोई अगर पॉलिटिक्स में है तो कांग्रेस के प्रधान खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब, आप हमें बोलने की बजाय, हमारे को बोलने की बजाय, आप अगर अपने लीडर पप्पू को समझाएं भी, वो कुछ सोच समझ के बोला करें, उनको क्लासेस लगाएं, उनकी ट्रेनिंग दें। हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके लिए जब वो शब्द यूज करते हैं, उनके लिए जब बोलते हैं, उस टाइम आप कहां होते हैं। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल पॉलिटिक्स की नहीं है। हम मैं ना कोई BJP की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं कोई मंत्री की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं कोई पॉलिटिशियन की औहदे पे बोल रहा हूं। मेरी पीड़ा खड़गे साहब ए सिख है, सिख। जो आपने ये बात कही नहीं, आपने बड़ी बड़ी बातें तो लिखी हैं, आप ये बताओ। मैं उनको आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आपको किसी स्टेट में कौन सा सिख मिला जिसने ये कहा कि इस देश में मुझे पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है। खड़गे साहब, कौन सा आपकी स्टेट कर्नाटका में मिला जिसने कहा मुझे कड़ा डालने से रोका जा रहा है। कौन सा ऐसा सिख, मैं कहता हूं कांग्रेस में कोई ऐसा सिख लाके खड़ा कीजिए जो कांग्रेसी हो खड़गे साहब, जिसने ये कहा हो भी मुझे गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है। आप इस बात को समझते ही नहीं, आप बात घुमा के कहां कर रहे हैं। राहुल गांधी का परिवार, आपने ये कहा इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी, पर जो इतने हजारों की गिनती में सिख, उनका मैसेकर हुआ है, उनको मारा गया टायरों में, गलों में उनके टायर डाल, उसकी जिम्मेवारी गांधी फैमिली की है कि नहीं, उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताइए भी, पंजाब में जो लहू लहान धरती हुई, 35,000 लोग शहीद हुए, हमारे दरबार साहब गुरुद्वारे पे इंदिरा गांधी जी ने टैंक, गोले, आपकी पार्टी के जो वो भी प्राइम मिनिस्टर थे किसी टाइम, हमारा अकाल तख्त साहब गोल्डन टेम्पल ढह ढेरी हो गया। इस दिल्ली में आपकी पार्टी, आपके लीडरों के कहने पर, राजीव गांधी जी के, दिल्ली में लोगों को गली गली, बाजार बाजार, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें, उनका कारोबार, उनके ट्रक और उनके परिवार जला दिए गए। आज आपको वो टाइम भूल गया? वही दर्द दोबारा
राहुल गांधी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, आप उस बात को घुमा रहे हैं। टेररिस्ट तो किसी एक आदमी, दो आदमियों को मारेगा गोली से, गांधी फैमिली ने तो हजारों लोगों को ऐसे शब्द मुंह से बोले जिस शब्दों से लोग खून के प्यासे हो गए थे उसके, और सिखों को इस तरीके से गलों में टैर डाल के इस तरीके से उनको जलाया गया, मारा गया। वही चीज राहुल गांधी, और इससे शर्म की बात होगी कोई? वो मीडिया वाला आज वो हर चैनलों पे वो सिख चला के बोल रहा है, अभी मेरे को खड़ा कर लिया और मेरा नाम दे दिया। मैं तो मीडिया के से क्वेश्चन पूछने के लिए बैठा था, वो सिख जिसको उन्होंने खड़ा किया था जब बोला था, वो आज कह रहा है भी मैं तो कहीं, मेरे को कभी किसी ने रोका नहीं, कभी किसी ने ये नहीं कहा पगड़ी क्यों बांधी है, कड़ा क्यों डाला है। अगर आप में क्षमता होती राहुल गांधी जी, आप बोलते भी यहां पे सिखों की फ्रांस में, वहां पे उनको पगड़ी रोकी जाती है, इस देश में सिखों के, अमेरिका में, कनाडा में कल ही केस था, वहां पे एक ऑपरेट कर दिया गया और एक बुजुर्ग आदमी के बाल जो है उसको शेव, उसकी दाढ़ी कर दी गई, जो उन्होंने लिख के पहले दिया था। अच्छा होता सिखों के इश्यू हैं जो विदेशों में, वो आप उठाते। यहां तो वो खुद बोल रहा है भाई हमें कहीं ये तकलीफ नहीं, और आप क्यों बोले? आप यही सियासत खेल के आपने सिखों को जला के, सिखों को मार के, उस टाइम देश में सबसे ज्यादा सीटें जीत के आप सत्ता में आए थे, और वही आपको तकलीफ है। 15 साल से भी मोदी साहब बैठे हैं। मैं एज ए सिख बोल रहा हूं भी आपने ये चिंगारी वहां पे सिखों को लगाई है। अगर कोई नौजवान बच्चा, आजकल पता है ये मोबाइल के ऊपर ये कैसे बातें ट्रेवल करती हैं, अगर कोई बात ट्रिगर हो गई किसी भी सिख के मन में, किसी बच्चे के मन में ये बात आ गई भी देश में हमें रोका जा रहा है गुरुद्वारे जाने से, पगड़ी बांधने से, कड़ा बांधने से, अगर कोई चीज ऐसी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार मरैया हो गया, कोई दंगे हो गए, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? खड़गे साहब ये भी बता दीजिए। तो इसके नाम पे एफआईआर दर्ज है, मैंने कहा होनी चाहिए। इस बात को ये तो हमने संभाल लिया, उसके बाद बयान दे दिए सब जगह भी कोई ऐसी बात नहीं है। सिखों ने बाहर आके, और उस लड़के ने खुद, आप चलाना वो अपने चैनलों पे, जो उस लड़के ने खुद ये बोला भी हमें कहीं नहीं रोका जा रहा। अगर ये चिंगारी कहीं काम कर जाती उनकी, अगर कर जाए तो हजारों लोगों में बवाल हो जाएगा। उसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी के परिवार के पहले भी केस चल रहे हैं इनके ऊपर, और पर्चा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैंने कहा वही ना, वो चाहते हैं भी शायद वो चीज लोग आज, क्योंकि उम्र, एज, टाइम बड़ा फैक्टर होता है, वो आज टाइम निकल के आज आगे नई जनरेशनें आ गई हैं, उनको ये, उनके अंदर ये जहर वो बीजना चाहते हैं। पर मैंने जो बात कही है वो ये गांधी फैमिली है जिन्होंने सिखों की पगड़ी उतार के उनके गलों में टायर, एक कोई ऐसा मेरे ख्याल से देश का डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, नॉर्थ इंडिया का खास तौर पे, जहां पे सिखों को नहीं मारा गया, और मरवाने वाले वो गांधी फैमिली थी। और आज भी राहुल गांधी ने वही काम वो किया है, उन्हें हाथ जोड़ के, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात कहता हूं।